بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ بچوں، آج کے اس لیکچر میں ہم 3 ٹاپکس کور کریں گے، جن میں تقسیم بنگال، شملہ وفد اور مسلم لیگ کا قیام شامل ہیں۔ سب سے پہلے ہم تقسیم بنگال پڑھیں گے۔ تقسیم بنگال کے حوالے سے چند کوسچنز ریز ہو سکتے ہیں، وہ پہلے دیکھتے ہیں کوسچنز کیا ہیں، تاکہ جب ہم بعد میں اس پہ ڈسکشن کریں تو ہمارے سارے کے سارے سوالات کے جوابات بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے تقسیم بنگال کب ہوئی، تقسیم بنگال کی ضرورت آخر کیوں محسوس کی گئی، تقسیم بنگال کے دوران کن باتوں کو مد نظر رکھا گیا، اور تقسیم بنگال سے مسلمانوں اور ہندوؤں پر کیا اثرات مرتب ہوئے، ہندوؤں کا کیا رد عمل رہا، اور یہ کب منسوخ کر دی گئی، اور اس تقسیم بنگال کی منسوخی پر مسلمانوں اور ہندوؤں پر کیا اثرات مرتب ہوئے۔ برطانوی ہند میں بنگال کا صوبہ آبادی اور رقبے کے لحاظ سے دیگر تمام صوبوں سے بڑا تھا۔ اس صوبے کا کل رقبہ تقریباً 2 لاکھ مربع میل سے زیادہ اور آبادی 8 کروڑ 50 لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ اتنے بڑے رقبے اور اتنی زیادہ آبادی کے تمام اندرونی اور بیرونی معاملات کو دیکھنا، سمجھنا اور ان کے حل ڈھونڈنا اس وقت ایک وزیر کی دسترس سے باہر تھا۔ اس وقت اقتصادی اور معاشی نظام مکمل طور پر ہندوؤں کے کنٹرول میں تھا۔ یہ 1905 کا وقت تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب لارڈ کرزن ہندوستان کے وائسرائے تھے، اور ان کی سفارش پر برطانوی پارلیمنٹ نے انتظامی سہولت کے پیش نظر بنگال کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، کیونکہ انگریز جانتے تھے کہ اتنے بڑے اور وسیع صوبے کا انتظام صحیح طرح سے چلانا ایک گورنر کے بس کی بات نہیں۔ اس تقسیم کے نتیجے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جہاں مسلمان اکثریت میں ہے وہاں مسلمانوں کا صوبہ بنا دیا جائے، اور جہاں ہندو اکثریت میں ہے وہاں ہندوؤں کو وہ جگہ الاٹ کر دی جائے۔ اس طرح جو مسلمانوں کے حصے میں جو علاقہ آیا اسے مشرقی بنگال، اور جو ہندوؤں کے حصے میں علاقہ آیا اسے مغربی بنگال کہہ دیا گیا۔ اس سے ہوا یہ کہ مسلمان بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ خوش ان کے ہونے کی وجہ یہ تھی چونکہ اقتصادی اور معاشی نظام تو مکمل طور پہ ہندوؤں کے کنٹرول میں تھا، لیکن جیسے ہی مسلمانوں کا علیحدہ سے ایک سیکٹر بنا، علیحدہ سے ایک جگہ بنی، تو وہاں کے سارے معاملات ایک مسلمان ہینڈ اوور ہو گئے، اور مسلمان ہی جو باقی مسلمان تھے وہ مسلمانوں کے ہی انڈر کام کرنے لگے۔ تو اس طرح سے انہیں اپنے تمام مذہبی، معاشی اور سیاسی ہر طرح کی ضروریات میں، ہر طرح کی معاملات میں آزادی حاصل ہو گئی، جبکہ ہندو اس سے سخت ناخوش ہوئے۔ ہندو کے ناخوش ہونے کی وجہ یہ تھی چونکہ انہوں نے مسلمانوں کو اقتصادی، سیاسی اور سیاسی طور پہ انہوں نے مسلمانوں پہ اپنی اجارہ داری قائم کر رکھی تھی، لیکن چونکہ یہ صوبہ جیسے یہ صوبہ بنا، تقسیم ہوئی، یہ چلے گئے، مسلمان سیپریٹ ہو گئے ہندوؤں سے، تو ہندوؤں کو اپنی وہ جو ایک ان کے پاس ایک اقتصادی، سیاسی اجارہ داری اور بالادستی تھی وہ ان کو ختم ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ہندوؤں نے تقسیم بنگال کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے تقسیم بنگال ماننے سے انکار کیا تو اس وقت انہوں نے شدید قسم کا رد عمل ظاہر کیا۔ اس وقت انہوں نے یہ کیا کہ کیونکہ وہ دل سے یہ چاہتے تھے کہ یہ تقسیم بنگال کی منسوخی ہو جائے، تو اس کے ہندوؤں نے یہ نتائج اخذ کرنا شروع کیے۔ انہوں نے تقسیم بنگال ماننے سے سرے سے انکار کر دیا، تقسیم کی منسوخی کے لیے زور لگانا شروع کر دیا۔ انہوں نے عدم تعاون کی تحریک چلانا شروع کر دی، انگریزی مال کا بائیکاٹ کر دیا، ٹیکسوں کی ادائیگیاں روک دیں، اور بالآخر اس قدر تشدد پر اتر آئے یہاں تک کہ وائسرائے کو قتل کرنے کی بھی سازشیں کرنے لگے، اور ٹیکسوں کی ادائیگی بھی روک دی گئی۔ اب اس طرح کے شدید قسم کا رویہ ان کے شدت پسندی دیکھتے ہوئے برطانوی ہند نے آخرکار جو ہندوؤں کے آگے گھٹن ٹیک دیا، اور اس طرح 1911 میں بنگال کی تقسیم کو بالکل منسوخ کر دیا گیا۔ اور جیسے ہی تقسیم بنگال منسوخ کر دی گئی، اس سے مسلمانوں کو شدید قسم کا صدمہ ہوا، انہیں بہت زیادہ دکھ ہوا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں شملہ وفد میں 1906 میں ہوا تھا یہ شملہ وفد ایکچولی کیا تھا کہ ایک گروپ تھا مسلمانوں کا، وہ اپنے کچھ مطالبات لے کر شملہ، ایک جگہ کا نام ہے شملہ، گیا تھا وہ اپنے کچھ جو ہے مطالبات لے کے۔
बेटे मैं यहाँ आपको ये बताते चलो, जनूबी एशिया के मुसलमानों की सियासी तारीख में 1906 का साल एक अहम साल करार दिया जाता है, क्योंकि इस साल यहाँ के मुसलमानों ने दो नहायत अहम कारनामे सर अंजाम दिए। नंबर 1 ऑल शिमला वफ़द की तंजीम, और नंबर 2 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। अब तकसीम बंगाल चूँकि 1905 में तकसीम बंगाल वाला मामला हुआ था, इसके पेश नज़र हिंदुओं का रवैया खुलकर मुसलमानों के सामने आ गया था, और मुसलमानों को यकीन हो गया था कि उनके हकूक़ के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ तो हो ही नहीं सकता, और अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्हें नए रास्ते का भी इंतखाब करना होगा। इस तरह 1 अक्टूबर 1906 को मुसलमानों का एक सियासी वफ्द सर आगा खान की क़यादत में अपने मुतालबात लेकर वासराय हिंद लॉर्ड मंटो से शिमला में मिला, जिसमें मुसलमानों ने जुदागाना इंतखाबात का मुतालबा किया। यहाँ मैं आपको बेटे ये बताती चलूँ कि मुसलमानों ने अपने क्या मुतालबात रखे थे, गौर से सुनिएगा, बुक पे ये आपके नहीं है, ज़रा मैं आपको बोल के बता देती हूँ, तो आप इनको सुन लीजिएगा, यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि इनके मुसलमानों के उस वक्त क्या मुतालबात थे। मुसलमानों का ये मुतालबात सामने रखे कि हिंदुस्तान में जुदागाना तरीका इंतखाब मुतारिफ करने का मुतालबा, सरकारी मुलाजमतों में मुसलमानों की भरपूर नुमाइंदगी, बरतानवी हिंद में मुसलमानों के लिए लहदा यूनिवर्सिटी कायम करने के लिए इमदाद तलब की उन्होंने। जब ये मुतालबात ले जाकर इस वफ्द ने वासराय हिंद लॉर्ड मंटो के सामने रखे शिमला में, तो उसने इस पर बड़ा मस्बत सा जवाब दिया। उसने कहा, बराए मेहरबानी मुझे समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन इसका रद्द-ए-अमल ये हुआ सॉरी उसने उस वक्त इसका मस्बत जवाब देते, लेकिन इसमें किसी किस्म की कोई पेशरफ्त ना हुई, इसमें किसी किस्म का कोई काम नहीं हुआ, कोई अमल नहीं हुआ। ये वो वक्त था जब मुसलमानों को थोड़ी सी तसल्ली हो गई थी कि इन्हें मुस्बत जवाब मिला है, तो मुमकिन है कि इनके आगे भी जो है इनके मुतालबात को पजीराई मिलेगी। लेकिन वो बात आई गई हो गई, तो उस वक्त में मुसलमानों के दिल में शिद्दत से यह ख्वाहिश जागी, क्यों ना इनकी एक सियासी जमात होती, क्योंकि अगर इनकी एक सियासी जमात होती, क्योंकि बेटे आपको रिप्रेजेंट करने के लिए आपका रिप्रेजेंटेटर का होना जरूरी है। कोई भी रिप्रेजेंटेशन तभी रिप्रेजेंट होती है जब उसको रिप्रेजेंट करने के लिए रिप्रेजेंटर मौजूद हो। तो इसी तरह मुसलमानों के मुतालबात को रिप्रेजेंट करने के लिए उस वक्त कोई रिप्रेजेंटेटिव जो तंजीम थी तो नहीं, उस वक्त मुसलमानों ने शिद्दत से यह ख्वाहिश जागी कि क्यों ना उनकी भी कोई सियासी जमात होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने तगोदो शुरू कर दी, और इस तरह 1900 जमात की जो कि वो इसमें कामयाब भी हो गई। 1906 में आगे हम पढ़ेंगे मुस्लिम लीग का क़याम में हम पढ़ेंगे कि इस तरह उन्होंने एक सियासी जमात का एस्टेब्लिश की, जिसका नाम उन्होंने मुस्लिम लीग रखा, और इस तरह 1909 में मुसलमानों को जुदागाना इंतखाब का हक भी दे दिया गया। 1905 फिर 1906 और फिर 1906 मुतालबा जब मुस्लिम लीग का क़याम होता है, जब मुस्लिम लीग का क़याम हो गया तो आगे जाकर फिर कुछ सालों में जाकर जुदागाना इंतखाब का हक मुसलमानों को दे दिया गया। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक, मुस्लिम लीग का क़याम। जैसा कि आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, मुस्लिम लीग का क़याम 1906 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया। इस क़याम के मुहर्रिकात ये थे, अब वो कौन से थे आपको पिछले टॉपिक्स पढ़ के भी अंदाज़ा हो गया होगा। सबसे पहला जो मसला था, उस मसले के पेश नज़र इन मुसलमानों ने मुस्लिम लीग की जमात के बारे में सोचा था, ये था तकसीम बंगाल 1905, जिसमें मुसलमान बहुत खुश थे, लेकिन हिंदुओं का रवैया इंतहाई शदीद किस्म का था। नंबर 2 अंग्रेज़ों का रवैया। अंग्रेज़ों का रवैया क्या रहा था? पहले तो उन्होंने बंगाल को तकसीम कर दिया और मशरकी हिस्सा मुसलमानों के हिस्से में आ गया, लेकिन जल्द ही वो हिंदुओं से खौफजदा हो गए, हिंदुओं से डर गए, और इस तरह वो तकसीम बंगाल को फिर से मनसूख कर दिया गया 1911 में, और मुसलमानों की फिर ना सुनी गई। मुसलमानों का एहसास महरूमी, ये वो वक्त था जब मुसलमान चाहते थे कि तकसीम बंगाल हो, और क्योंकि उस वक्त मुसलमान खुद को कंफर्टेबल महसूस कर रहे थे, लेकिन चूंकि मुसलमानों का साथ नहीं दिया गया और मुसलमानों की बात नहीं सुनी गई, फिर इसके बाद शिमला वफ्द जब जाता है, वासराय लॉर्ड मंटो से मिलता है शिमला में, उस वक्त भी मुसलमानों की बात तो सुन ली जाती है, मुस्बत जवाब भी दे दिया जाता है, लेकिन उस पर किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो इसके पेश नज़र ये बातें मुसलमानों को बहुत ज़्यादा, इन बातों से मुसलमानों को बहुत ज़्यादा सदमा हुआ, और मुसलमान बहुत ज़्यादा पस्ती में चले गए, और उन्हें बहुत ज़्यादा शिद्दत से एहसास हुआ कि मुस्लिम लीग का क़याम हो।
और मुसलमानों को सियासी तौर पर नज़रअंदाज किया जाना। सियासी तौर पर नज़रअंदाज कैसे किया गया था ये आगे जाकर पढ़ेंगे। अभी पिछले 2 टॉपिक्स में आपने पॉइंट्स भी पढ़े कि मुसलमान बार बार इनसे जुदागाना इंतखाबात का हक मांगते थे। क्यों मांगते थे जुदागाना इंतखाबात का हक? वो इसलिए मांगते थे कि मुसलमान जो है मुसलमान भी आए इंतखाब, मुसलमान भी मुंतखब हुए इलेक्शंस में और मुसलमान भी आगे आए ताकि मुसलमानों के ऊपर मुसलमान ही लीडरशिप कर सके और इस तरह मुसलमान अपने जो मसले मसाइल है मुसलमानों के थ्रू अच्छे से उनको सॉर्ट आउट कर सकें। इन मुहरकात की वजह से जो है कि मुसलमानों को और क्या चीज़ देखने को मिली, उसमें यह था कि मुसलमान को अच्छे से बावर हो गया कि अंग्रेज़ और हिंदू जो है वो आपस में मिले हुए हैं और हिंदू और तावन की ये अंग्रेज़ और हिंदुओं का तावन ही था जिसकी वजह से मुसलमानों की बिल्कुल नहीं सुनी गई। और इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए मुसलमानों की ये जमात और फिर से मुतहरिक हुई और एक मुश्तरका सोच के दायरे में आ गए और वो सोच ये थी कि अपनी एक सियासी जमात हो। मुसलमान लीडर इकट्ठे होकर वास्ता इनसे मिलने शिमला गए, वापस आकर अपने आप को सियासी तौर पर मुनज़्ज़म कर लिया। मुस्लिम लीग के क़याम के चीज़ा मकासिद दर्ज झेल थे। अब हम पढ़ेंगे कि वो मकासिद क्या थे। नंबर 1, एक मुसलमानों में बरतानवी हुकूमत के लिए वफादाराना जज्बात पैदा करना, हुकूमत की कार्रवाइयों के बारे में इनके शकूक व शुबहात को दूर करना। मुसलमान सख्त मायूस हो चुके थे, नाउमीद हो चुके थे, शदीद किस्म के सदमे में थे तकसीम बंगाल से, फिर हिंदुओं के रवैये से, फिर बरतानवी हुकूमत के रवैये से। इसलिए मुसलमानों के दिल में तरह तरह के शकूक व शुबहात थे। इन शकूक व शुबहात को दूर करने के लिए हुआ क्या कि मुसलमानों ने अपना ये मकसद रखा, मुस्लिम लीग के थ्रू, अपनी जमात के थ्रू ये मकसद आगे रखा कि मुसलमान जो बरतानवी हुकूमत से के बारे में शक व शुबहात में आ गए हैं, हम उनके शक व शुबहात दूर करें और उनके दिलों में ऐसा जज्बा पैदा करें कि वह हुकूमत से वफादार हैं। मुसलमानों के सियासी हकूक़ की हिफाजत करना और उनके मुतालबात को हुकूमत के सामने पेश करना। बेटे, जब तक किसी भी कौम का या किसी भी टीम का कोई रिप्रेजेंट करने के लिए कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, कोई रिप्रेजेंटर नहीं होता, तो नहीं पता चलता कि इस ग्रुप के, इस कौम के क्या मसले मसाइल हैं, इस मुल्क के क्या मसले मसाइल हैं। तो इसी तरह मुसलमानों के मसाइल का भी एक्चुअली नहीं पता था कि उन्हें सियासी तौर पे, मजहबी तौर पे, इक्तिसादी तौर पे, मुआशी तौर पे उन्हें कोई हुकूक भी दिए जा रहे हैं, क्या उनका तहफ़्फ़ुज़ भी किया जा रहा है या नहीं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इसलिए ये दूसरा मकसद ये रखा कि उनके मुसलमानों के सियासी हकूक़ की हिफाजत की जाए, उनके मुतालबात को हुकूमत के सामने मनवान पेश किया जाए। मुस्लिम लीग के मुंदरजा बाला मकासद को नुकसान पहुँचाए बगैर बड़े सगैर के दूसरे अक़वाम से ताल्लुकात इस्तवार करना। मुस्लिम लीग के मुंदरजा बाला मकासद को नुकसान पहुँचाए बगैर के बड़े सगैर की दूसरी अक़वाम से ताल्लुकात इस्तवार करना, यानी एक जगह पर आप रहते हो तो एक कौम के दूसरी कौम से ताल्लुकात तो होते हैं क्योंकि सरवाइव करने के लिए ये ज़रूरी होता है, लेकिन इसके लिए अशद ज़रूरी यही है कि जो उनके असल मकासद हैं उनको किसी भी किस्म का ज़रर ना पहुँचाया जाए, नुकसान ना पहुँचाया जाए। बेटा, ये था आज का लेक्चर। एक दफ़ा फिर से हम देख लेते हैं हमने इसमें क्या पढ़ा। हमने इसमें 3 टॉपिक्स पढ़े: तकसीम बंगाल 1905, शमला वफ्त 1906, मुस्लिम लीग 1906। आप इसको देख लेंगे, याद कर लेंगे। इसमें आपका लिखने का कोई काम नहीं है, इसमें आपका याद करने का ही काम है। ज़्यादा इसको याद कीजिएगा और जो क्वेश्चंस मैंने इसमें रेज किए थे, अगर आप उन क्वेश्चंस की रोशनी में उन क्वेश्चंस को लर्न करेंगे तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। इस तरह आपके लिए इन शॉर्ट क्वेश्चंस को याद करते हुए आपका लॉन्ग क्वेश्चन ईजीली तैयार हो जाएगा और लॉन्ग क्वेश्चन याद करने में आपके लिए अच्छी खासी आसानी होगी। अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो काम आपको करवा दिया गया बेटे आप उसको करेंगे, आप इसको कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।